गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद करुण विघ्ननुत हेरंब चरणाम्बुजरे नमः। नमस्ते श्री सिद्धिदाता गणेशाय नमो नमः। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणानाथ आज मृदंग बजावे धट धराध धर धर कृदान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। Very happy Holi to you all. 2026 শুভ দোল পূর্ণিমা। সুন্দর স্বর্ণালী সান্ধ্যকালীন পরিবেশে গৌতম কোমল গান্ধারের উপস্থিতি, নিয়মিত সান্ধ্যকালীন মেটা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে নিজের তবলা রেয়াজ করে যাওয়া, চালিয়ে যাওয়া, নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করে নেওয়া, যতটুকু সময় পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক চিন্তন, সাহিত্য নিয়ে ভাবনা চিন্তা, সাহিত্যের মাঝে ডুবে থাকা, বাংলা হিন্দি উর্দু ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, যতটুকু পারা যায় বই পড়া, গল্প কবিতা পাঠের মাধ্যমে হোক বা যে কোনো সুন্দর যে সমস্ত জিনিসগুলো, পৃথিবীতে অনেক সুন্দর জিনিস রয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর সুস্থতা কামনায় গৌতম কোমল গান্ধারের প্রার্থনা স্বীকৃতি পায় ঈশ্বরের কাছে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে। আর এই সময় যতটুকু পাওয়া যায় নিজের লিজার সময়কে নষ্ট না করে এই সাংগীতিক মূর্ছনার মাধ্যমে নিজের যতটুকু তবলা রেয়াজ করার মাধ্যমে ভালো এক্সারসাইজ হয়ে যায়, শরীরের ব্যায়াম হয়ে যায়। তো এইভাবেই নিজের আর কিংবদন্তি সমস্ত ছোটবেলা থেকে যাদের সমস্ত ভারতবর্ষের খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের তাদের স্মরণ করি। কিংবদন্তি সমস্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ গাইয়ে, যারা ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট ছিলেন, সমস্ত মহান সঙ্গীতজ্ঞদের স্মরণ করে, তবলার কিংবদন্তি সমস্ত পণ্ডিত ওস্তাদেদের স্মরণ করে, তাদের বাজনা ছোটবেলা থেকে শুনেছি, শিখতে কিছুই পারিনি। এক জন্মে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া সম্ভব নয়, ওই শুনে শুনে যতটুকু বাজানো বা কাছে যতটুকু তাদের সঙ্গ সুখ করেছি। তো ব্যাস, এই নিজের ব্যস্ততার জীবনে যতটুকু সময় বের করে নিজেকে চেষ্টা করেছি, কিন্তু শিখতে কিছুই পারিনি। ওই তাদের ফলো করে গেছি।
ওই যতটুকু হাত দিয়ে আঙুল দিয়ে বেরোয় ওই অতটুকুই ব্যাস। আর এইভাবেই রিটায়ার্ড লাইফ নিজের সাংগীতিক মূর্ছনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আনন্দ অনুভব করা। So I dedicate my tabla riyaz in the memory of legend musicians of our country, maestro tabla players in the past and at present. I dedicate my tabla riyaz to their fit, and I dedicate my tabla riyaz to the lotus feet of our spiritual Guruji, Lord Swami Traksharanand Maharaj Ji. Jai Shri Guru Maharaj Ji ki.
This is, in fact, in Farrukhabad, it is called Shuruat Peshkar. In same Delhi Baj, there are gharanas of tabla, original gharana of tabla, Delhi gharana, Punjab gharana. These two are very old gharanas of tabla. Then Ajrara gharana, Farrukhabad gharana, Lucknow gharana, Banaras gharana, Kolkata gharana, Bishnupur gharana too. So in the every gharana in Banaras there is Uthan. So Salami, Peshkar, these are the name of when tabla player during in the course of playing solo tabla, they begin with Shuruat, Peshkar, Salami. In Banaras Gharana they say Uthan. Uthan, Peshkar, Salami, such as the classical vocalist when they begin singing Khayal, before that they alap in the singing form. First they sing alap, then Bandistan, Sargam, etc. And similar in the tabla we find that Salami, Peshkar, Shuruat, Uthan. In tabla riyaj, I have seen Pandit Kanthe Maharaj, Pandit Kishan Maharaj, Pandit Shanta Prasad Elias, Pandit Uday Maharaj, all great tabla players of Banaras Gharana. So they were playing tabla 8 to 10 hours during their riyaz time. They were great prophet, sadhak, Lakshu Maharaj, Pandit Anokhe Lal Mishra, his son Pandit Ramji Mishra, many great tabla players, Pandit Gyan Prakash Ghosh, his guru, Ustad Masid Khan, Ustad Masid Khan's son, great tabla maestro, Ustad Karamatullah Khan, he is most talented Khalifa tabla player, Ustad Sabir Khan, tabla maestro, and many tabla players which I saw right from the childhood. Pandit Shankar Ghosh,
Pandit Shamul Bose, Pandit Kanai Datta, many other tabla players. And Bengal produced many tabla players, and this was the great gift of Pandit Gyan Prakash Ghosh. Pandit Shankar Ghosh, initially he took talim from Pandit Sudarshan Adhikari, then Ustad Firoz Khan, then Pandit Gyan Prakash Ghosh. Pandit Shankar Ghosh was the finest and very genius tabla player of our country. Pandit Sapan Chaudhary, great tabla player at present, more than 80 years age. Now he is running 81 years. During his tenure at Kolkata, right from the month of December to February, I attended his tabla concert, 3 to 4 concerts which I attended right from December to February. His tabla accompaniment as well as tabla solo, great tabla player. So I dedicate my tabla riyaz in the memory of past tabla players and present tabla players too. So dear friends, this Gege Tete Gege Nana, Keke Tete Gege Nana, Dhati Dhage Thunna Kenna. These are the very good tabla bowls for riyaz practice.
This qaida, Dilli Gharanas qaida, it can be played in the Tintal 16 beats, Jhaptal 10 beats, in Rupattal 7 beats. It was in 16 beats, but this this it is within the 10 beats Jhaptala. Dina, di, dina, dina, di, dina. Dhati, dhage, thunna, kenna, tatre, kit tak tere kit dhati, tere kit tak tere kit dhati, dhage, dhina, genna, dhatere kit tak tere kit dhatere kit tak tere kit dhage, thunna, kenna, tatere kit tak tere kit dhatere kit tak tere dhati, dhage, dhina, genna. Composition I heard from Pandit Anand Gopal Bandyopadhyay. Similar, in 7 beats. These are the this is in fact Delhi Gharana's Rela. So these are the very good Farrukhabad's Rela.
Ulta Tete. Oh, when I recall Pandit Shanta Prasad as Uday Maharaj, oh, the finest tabla player, all the bowls, bani of tabla, they are blooming, they are blowing like the flowers. When the flower, when just it is coming out from the sheets, and Uday Maharaj, Pandit Shanta Prasad, his fingers were producing the tabla bowls like flowers are blooming. Initially, this is original bowl dhatete dhatete dhadhatete dhage tu nagena tatete dhatete dhadhatete dhage dinagena. But legend tabla player, master tabla player, Pandit Shankar Ghosh, he added ghena na na natete dhete dhatete dhage tu nagena. So this becomes so melodious. Dhatete dhatete dhadhatete dhage tu nagena. This is original, but he added ghena na na natete dhete dhatete dhage tu nagena. Dhatete dhatete dhadhatete dhage tu nagena na na natete. If I play reverse that I'm shipping water. ये धार ताधे देटे धार धार धाती नाती नार तार ताधे देटे धार धार धाती नाती नार पंडित गुदई महाराज अलायस पंडित शांता प्रसाद जी के हाथ से ये जो इतना सुंदर, उनके हाथों से हर तबले की बोल कायदा हो, बांट हो, रेला हो, टुकड़ा हो, ठेका हो, लगता था मानो गुलाब का फूल खिल उठ रहा है। इतने उनके कठिन परिश्रम और रियाज साधना था। वो बताते थे मुझे, बचपन में मेरे घर बनारस में भी आते थे, पटना में आते थे, और दुर्गा पूजा में तो उनके साथ कितने मंचों पर साथ में बैठने का अहोभाग्य मिला। और गुदई महाराज जी बताते थे बहुत परिश्रम किए, बचपन से ही वो 12 घंटा 14 घंटा रियाज करते थे, और हाथ में सच में माँ सरस्वती विराजमान थी। और ये बजाते थे, बोलते थे देखो भैया दिल्ली का कुतुब मीनार देखो,
धार तादे देट धार धार धातिन नातिन नार तार तादे देट धार धार धातिन नातिन नार धार तातिन धार तातिन।
पंडित शांता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ये बांड भी बनारस का बहुत बजाया करते थे अपने स्वतंत्र तबला वादन में, सोलो तबला वादन में। धिक धिना तिगड़ दिना धागी न धिक तिनाड़ा, तिक तिना तिगड़ दिना धागी न धिक तिनाड़ा। ये पंडित शंकर घोष जी बजाया करते थे इसी का। जैसे बनारस में धिक धिना तिगड़ दिना धागिना धिक तिनारा, उसी तरह फरुखाबाद में बसता था नाथी गति नाना घेना घेना धाती धादा थुना, नाती कति नाना घेना घेना धाती धादा दिना। ये बहुत सुंदर बजाया करते थे पंडित शंकर घोष जी। नाथी गति नाना घेना घेना धाती धादा थुना, नाती कति नाना घेना घेना धाती। हम इन लोगों का सुनते रहते थे और देखिए ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं भाई उनकी आत्माओं को शांति मिलते रहे, और जहां भी है स्वर्ग लोक में है, परमात्मा बैकुंठ धाम में है, वहां भी अपना रियाज कर ही रहे हैं। और उनका तबला वादन चारों तरफ कानों में कर्णों में गूंज रहा है। ऐसे ऐसे महान तबला वादक हमारे देश में पैदा हुए। उसी तरह देखिए पंजाब घराना के उस्ताद फिरोज खां साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, उनके सुपुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसा तबला वादक थे, तबले के जादूगर थे। उन्होंने तबले को सारे विश्व में इस तरह से पॉपुलराइज्ड किया कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक जो संगीत समझता है और जो संगीत ना भी समझे वो भी उस्ताद जाकिर हुसैन जी को फॉलो करता था, उनके तबले को सुनता था और उनके तबले से ऐसा जादू निकलता था, उनके हाथों में ऐसा जादू था कि तबले को उन्होंने एकदम बिल्कुल घोर के पी लिया है। लगता था कि बॉल फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसी तरह तबले के बोल वाणी से इस तरह के आवाजों को वो उत्पन्न करके प्रोड्यूस करके दिखाते थे अपने स्वतंत्र तबला वादन के माध्यम से। शंख बज रहा है, हर आवाजों को वो निकाला करते थे। ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोड बिजी में जा रहे हैं, कृत्य 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 इस तरह से वो अपने अपने बोलवानियों को बजाकर वो सुनाया करते थे। उस्ताद जाकिर हुसैनी थे और इतने महान तबला वादक थे कि अपना मंच में प्रदर्शन तबला बजाने के पूर्व वो किसी चेले किसी शिष्य को हमने नहीं देखा कि कोई शिष्य जाके मंच पर तबला रख रहा है या कोई असिस्टेंट जाके रख रहा है। वो खुद अपने तबला और बीड़ा को अपने हाथों से ले जाया करते थे। आज से नहीं, मैं उन्हें मुझे याद है 1982 में जब हम पटना में थे तो पटना में पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का मैं प्रोग्राम करवाया था। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल बहुत बड़ा हॉल है, जहां 3000 एकोमोडेशन, वहां लोग श्रोतागण बैठते हैं। और समझिए कि उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित रविशंकर जी और इसके जो आयोजक थे सूर मंदिर के बिपिन बाबू थे, बिपिन बिहारी सिन्हा जी, उनको वो मुझे छोटा भाई के जैसा वो प्यार करते थे। वो उस वक्त मैं बिल्कुल समझिए अपना पढ़ाई लिखाई खत्म कर कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म कर बिल्कुल दौड़ते थे उन लोगों के पीछे। और मैं भी उसके बाद उन लोगों के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, उनके आदर से मैं भी पटना में एक अच्छा प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजर के रूप में अपने को प्रमाणित करने का मुझे सफलता उनके ईश्वर के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद से मिला।
और जुआ तबला वादक के नाम से भी मैं पटना में काफी मशहूर, मुझे लोग जानते थे। ईश्वर की कृपा से लोकप्रियता हासिल हुई थी। तो दशहरा से लेकर दीपावली तक पटना में बिल्कुल हर मोड़ पर शास्त्रीय संगीत का 3 प्रहर में कार्यक्रम हुआ करता था। दोपहर 2 से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक शास्त्रीय संगीतकार लोग जुटते थे और हर मोड़ों पर, चौराहे पर पटना में प्रोग्राम हुआ करता था। तो उसी तरह पटना जंक्शन स्थित प्रोग्राम हुआ करता था और वहां हार्डिंग पार्क था, वहां प्रोग्राम होता था। फिर बाद में वो प्रोग्राम शिफ्ट होकर पटना के गांधी मैदान में शिफ्ट हो गया और मैं इधर भारत माता मंडली, सौदागर यादव, राम प्रसाद यादव, गौरी बाबू, इन लोगों के साथ, श्याम स्टील, श्याम बाबू, इनके साथ मैं काफी क्लोज था। और समझिए कि जितने भी कलाकार हिंदुस्तान भर से आया करते थे, किनका किनका मैं नाम लूं, अब समझिए आजमगढ़ से पंडित बैजनाथ मिश्रा, बनारस के पंडित गोपाल मिश्रा, फैजाबाद के पंडित गोपाल मिश्रा, उस जमाने के श्रेष्ठ सारंगी वादक आया करते थे। इस तरह से समझिए पंडित राम नारायण पांडे जी, इस तरह के, और उस्ताद सागिरुद्दीन खां, बहुत पुराने पुराने सारंगी वादक लोग थे। और तबला में तो कहना क्या, बनारस के पंडित कंठे महाराज जी से लेकर, और हर मोड़ पर तबला प्रोग्राम हुआ करता था। पंडित गोपी कृष्ण जी, पंडित शंभू महाराज, अछन महाराज, उसके बाद बिरजू महाराज जी के पिताजी, चाचा जी बिरजू महाराज जी, समझिए कि पंडित लच्छू महाराज, पंडित शारदा सहाय, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, उनके पुत्र पंडित रामजी मिश्रा, लच्छू महाराज जी तो थे ही, उसके बाद शारदा सहाय, जिनका भी बेटा बहुत अच्छा तबला बजा रहा है, संजू सहाय, पंडित किशन महाराज, उनका सुपुत्र पूरन महाराज, हमारे काफी अच्छे मित्र, पंडित शांता प्रसाद गोदई महाराज जी के सुपुत्र थे, बड़े पुत्र पंडित कुमार लाल मिश्रा, बहुत अच्छा तबला बजाते थे। बनारस रेडियो में वो कार्यरत थे स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर। लखनऊ के उस्ताद अफाक हुसैन का तबला सुना, उस्ताद मेहदी हसन खां का तबला सुना, लतीफ अहमद खां, उस्ताद दिल्ली घराना के महान तबला वादक उस्ताद लतीफ अहमद खां, उस्ताद सफाद अहमद खां, समझिए कि उस्ताद मुन्ने खां, उस्ताद बल्लू खां, उस्ताद निजामुद्दीन खां हैदराबाद के, इस तरह से काफी, उस्ताद अहमद जान थिरकवा और सीनियर थे, उस्ताद अजम खां, उस्ताद अमीर हुसैन खां, उस्ताद आबिद हुसैन खां, महान तबला वादक। और बनारस के जो तबला के श्रेष्ठ जो फाउंडर थे पंडित प्रताप महाराज जी, उनके घर के सब, समझिए पंडित बाचा महाराज, उदय महाराज जी के पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी लोग सुनते थे। बड़े रामदास मिश्रा जी थे हमारे दादाजी के घर में, सब लोग आया करते थे। और हमारे फूफा जी गया में थे, बड़े रामदास मिश्रा जी। पंडित मुनेश्वर दयाल, हारमोनियम, श्रेष्ठ हारमोनियम वादक, पंडित गोविंद लाल नकफूफा जी जमींदार थे, उनके घर में भी कार्यक्रम हुआ करता था। पंडित बड़े रामदास मिश्रा जी के सुपुत्र पंडित गोवर्धन मिश्रा, अभी देखिए हाल ही में पिछले साल हम लोगों ने गवाया, महान ठुमरी वादक, शास्त्रीय संगीतज्ञ, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी, उनके सुपुत्र आते रहते हैं कलकत्ता में, राम कुमार मिश्रा, वो भी अच्छे मित्र मेरे हैं। तो इस तरह से सभी बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतकारों को स्मरण मैं करते रहता हूँ। और समझिए उस्ताद अली अकबर खां साहब का मैं कार्यक्रम कराया, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, हमारे घर पटना में जब भी आते थे। उस्ताद अली अकबर खां साहब का कार्यक्रम मैंने 5 फरवरी 1983 में करवाया। 82 में था पंडित रविशंकर जी का 5 फरवरी को बसंत पंचम राग बजाए थे, अभी भी याद है। और उसी तरह 1983 को 5 फरवरी को उस्ताद अली अकबर खां और उनके साथ तबले में पंडित शंकर घोष जी, उस्ताद अली अकबर खां साहब ने राग पुरिया धनाश्री करीब 3-3.25 घंटा तक उन्होंने बजाया। और क्या पंडित शंकर घोष जी का अपने जवानी का तबला था, संगत, समझिए 8.5 मात्रा, 9 मात्रा, 11 मात्रा, इस तरह से वो बजाया करते थे। और 3 ताल झपताल तो था ही। इस तरह से सारे संगीतकारों को याद करते रहता हूँ। समझिए हर मोड़ पे पटना में दशहरे में प्रोग्राम हुआ करता था। 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंतराल में किसी मोड़ पे समझिए पंडित रविशंकर जी का सितार बज रहा है, तो अगले चौराहे पर उस्ताद
रईस खां साहब का सितार बज रहा है। किसी और चौराहे पर पटना में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार बज रहा है। पंडित मनोज शंकर आते थे असम से। उसके बाद समझिए कि महान सितार वादक लोग ये मणिलाल नाग जी, उनके पिताजी भी आया करते थे, गोकुल नाग जी। और बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतकार हमारे घर में भी आए थे, पंडित बाशव राज राजगुरु जी, पंडित मणिराम, पंडित जसराज जी के बड़े उनके चाचा जी लगते थे, हाँ चाचा जी थे। इसी तरह से सभी महान कलाकार लोग का जब आवड़ा होता था पटना में। और इसी तरह स्मरणीय सब घटना सरोद में उस्ताद अमजद अली खां साहब, उनके पिताजी भी आए। तो उस वक्त तो हम लोग बहुत ही बच्चा छोटा थे। उस्ताद हाफिज अली खां साहब, उस्ताद अली अकबर खां साहब के पिताजी उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब। इस तरह से काफी स्मरणीय घटना सब है। पंडित उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के शागिर्द जो सचिव के पद में थे, हमेशा रहते थे, पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य जी बनारस के, उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, उस्ताद अलाउद्दीन खां ओ आमड़ा। वो दोनों पुस्तक मुझे उन्होंने भेंट किया, मुझे गिफ्ट के तौर पर उन्होंने दिया अपने हाथों से ऑटोग्राफ देकर। इस तरह से काफी स्मरणीय घटना सब है। समझिए क्या क्या तबला हम लोगों ने सुना। अजरारा घराना के उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, महान तबला वादक। इस तरह से लतीफ अहमद खां साहब, दिल्ली घराना के, क्या उनका कहानी बोलता था, आहा। और समझिए कि बनारस के तो सब थे। यही गोविंदा जी, जो इतने बड़े फिल्म एक्टर, गोविंदा जी के माता जी थी निर्मला अरुण जी के साथ पंडित शंकर घोष जी का तबला सुना, गुदई महाराज जी का सुना। मुझे एक बार उनके साथ अहोभाग मिला, रूम सिटिंग प्रोग्राम में उनके साथ बजाने का मौका मिला। क्या ठुमड़ी वो गाती थी, ठुमड़ी, कजरी, दादरा, चैती, लाखों के बोल सहे, ये सब गाना उनका था। गंगा मैया तोहरे पियरी शरईब, हाँ ये सब गाना। और गिरजा देवी तो थे ही, उस वक्त बनारस से आया करती थी। बाद में तो 79 में 78 में जब आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी का जब स्थापना हुई, तो 78 में पंडित किशोर महाराज जी के साथ मैं आया था कलकत्ता। और समझिए उस वक्त गिरजा देवी जी तो बाद में आकर शिफ्ट कर गई, 1979 के बाद 80 में वो आई, कलकत्ते में आके रहना शुरू की। उस्ताद निसार हुसैन खां साहब को देखा, उनके पास जाया करते थे हम और शंकर दा, कभी कदार रेडियो में उनका कार्यक्रम था, रिकॉर्डिंग में। उस वक्त राशिद खां बहुत बच्चा था और राशिद खां भी बहुत कम उम्र में चला गया। ईश्वर अल्लाह ताला ने उसे ऐसा, ईश्वर की वो देन, मैंने उसका जो गला आवाज जो था इतना खनक था, और राशिद खां के गले में। उसी तरह राशिद खां का भी बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। हमने बचपन में उसको देखा छोटे से, अभी बड़ा हो गया है। और समझिए वो, मैं अरमान उसका नाम है, यूट्यूब में हम सुनते रहते हैं उसका गाना। अच्छा आवाज एकदम राशिद का बिल्कुल कॉपी करता है उसका, उसी का आवाज एकदम उसी के अपने वालिद के तरह है उसका आवाज। इस तरह से काफी पुराने हमारे संगीत रिसर्च एकेडमी में हम जाया करते थे। हमारे एक मित्र उस्ताद मशकूर अली खां, वो भी बड़ा अच्छा, उसके पिताजी थे उस्ताद सुकूर अली खां, वो भी आते थे पटना में, बहुत अच्छे सारंगी वादक थे। वो लोग सब किराना घराना के उस्ताद वाहिद खां साहब के सब ट्रेडिशन में, परंपरा में आते हैं। उसी तरह उस्ताद मशकूर अली खां का एक शागिर्द है, मेरा भाई है संदीप भट्टाचार्य, बहुत अच्छा गा रहा है। इसी तरह पुराने जमाने के सारे संगीतज्ञों को मैं याद करते रहता हूं। और अभी भी एट प्रेजेंट जितने भी हमारे कोलकाता में हैं, अच्छा अच्छा गाना बजाना लोग, बच्चे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और ईश्वर अल्लाह ताला इन लोगों को बरकत दे, आशीर्वाद दे, दुआ दे, तो काफी अच्छा और करे। इसी तरह वही पंडित शंकर घोष जी बजाया करते थे, धिक दिना तिकड़ दिना धागी न दिखती नाड़ा। तो धिक दिना तिकड़ दिना धागी न दिखती नाड़ा का वो बनारस का था, और ये फरुखाबाद में बजाते थे। नादी गदी नाना गेना घेना दाती दादा तुन्ना, नाती कती नाना गेना घेना दाती दादा दिन्ना।
इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे तबले के बोल किसी भी घराना के हो, ये भी बहुत सुंदर पंडित शंकर घोष जी के हाथ से निकलता था। धाती के धेटता, धाती के धेटता, धाती के ना, धाती के धेटता, धाती के धेटता, धाती के ना, खुली मोदी क्लोज्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म में। बहुत अच्छा बोल कायदा सब। ये पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का मैंने सुना था। धातरिकटे धत्तिट्टे घेन्ना धाती घेन्ना थुन्ना केन्ना तातरिकटे धत्तिट्टे घेन्ना धाती घेन्ना धीना घेन्ना।
बिहार के महान तबला वादक थे पंडित कपिल देव सिंह जी। वो पंडित कंठे महाराज और पंडित किशन महाराज जी के शागिर्द थे, शिष्य थे। उनके हाथ से क्या क्या सब सुंदर सुंदर तबले की कायदा, बांट, रेला, टुकड़ा, उठान बहुत सुंदर बजाया करते थे। उनके हाथ से ये मैंने सुना, ये धागिना धा तिगड़ धागिना धा तिगड़ धा धा तिगड़ धागिना धा तिगड़ तुमना गड़ तक तिरगड़ तक ता तिरगड़ ताकि न ता तिरगड़ ताकि न ता तिरगड़ ता तिरगड़ धागिना धा तिगड़ दिन्ना गड़ तक तिरगड़ तक ता तिरगड़। बहुत सुंदर सुंदर सब याद आते रहता है, आजकल भूल जाते हैं। अब समझिए कि पंडित किशन महाराज जी लोग तो 80 साल के ऊपर, पंडित सपन चौधरी जी 80-81 साल में इतना खूबसूरती के साथ बजा रहे हैं। अब मैं 70 साल का होते चला, लेकिन दिल एकदम बिल्कुल 16 साल जैसा युवक बनाए रखते हैं, मिजाज बनाए रखते हैं। लेकिन ये है कि मैंने भूल जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा समझिए रेला है। धने गने नक तक धने गने धने गने नक घने नाना गने धने गने नक तक धने गने धने गने नक घने नाना गने। ये पंडित शंकर घोष जी बहुत सुंदर बजाया करते थे।
This is called tak tirigati tak, Katodi tak. ये धागे धिना के ना धागे थुना के ना
बुधई महाराज जी के हाथों से बहुत सुंदर निकासी इसकी हुआ करती थी और लगता है मानो फूल खिल रहा है। पंडित श्यामता प्रसाद जी के हाथों से, हर बोल उनके हाथों से फूल खिलता था, बिल्कुल इतना सुंदर निकासी उनके हाथों से हुआ करता था।
So this is more than 8:15, dear friends. Now I end my tabla riyaz on date. Very happy Holi, dear friends. Be healthy, be happy, be musically tuned and spiritually blessed, dear friends. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Parang Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Jena Characharam, Tatpadam Darshitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Ajnanatimirandhasya Jnananjo Shalakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय।
prayers go up and blessings come down.